السلام علیکم، یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے۔ صبح 6 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قاسم علی، میں ہوں نازیہ کمل۔ اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد علی۔ شامل کریں گے اہم خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے 3 منصوبوں کی منظوری۔ پی آئی اے کے لائسنس یافتہ اور تجربہ کار پائلٹس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارکردگی پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ ہمارے پائلٹس جو جہاز اڑا رہے ہیں ان کی ڈگریاں 100% کلیئر ہیں۔ ترقیاتی کاموں میں پیسوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے خسرو بختیار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ -1 اپوزیشن کی ذہنی اختراع ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انہیں چاہیے کہ گناہوں کی معافی مانگے اور لوٹی ہوئی رقم واپس لائے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات، خطے کی صورتحال، افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالم برادری کو ہاتھ بڑھانا ہوگا، وزیر خارجہ۔ زلمے خلیلزاد کا کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، جنگ بندی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج۔ بھارتی جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ سید علی گیلانی کی زندگی کشمیری عوام اور قائدین کے لیے روشن مثال ہے۔ بھارتی حکومت اور میڈیا کا مقصد تحریک آزادی کو بدنام کرنا اور انتشار پیدا کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سوپور اور راجوری میں مزید 2 افراد کو شہید کر دیا۔ ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم جاری، 36 اضلاع میں محکمہ زراعت، غذائی تحفظ اور فوج کی 972 مشترکہ ٹیموں کی کارروائی۔ 22,59,000 ایکڑ پر کنٹرول آپریشن، 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے۔ ملک بھر میں مزید 4,133 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، تعداد 2,13,470 ہو گئی۔ 91 افراد جان سے گئے، مجموعی طور پر 4,395 اموات، 1,08,02 افراد صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,07,92,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,18,000 اموات، 59,30,000 صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,30,000 سے تجاوز کر گئی۔ چین میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں سینکڑوں عمارتیں اور پل بہہ گئے۔ کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، بڑے پیمانے پر فصلیں بھی تباہ۔ اور ووسٹرشائر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرے روز بھی پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر توجہ دی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔
सबसे पहले आपको आगाह करें कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान एयरलाइंस के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलटों की पेशा वाराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुतालिका हुकूमती इदारों से कहा है कि वो बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर काम करें ताकि फ़ज़ाई मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात से बचाया जा सके। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। तफसीलात बता रहे हैं रियाज बरकी। वफाकी काबीना में पाकिस्तानी एयरलाइंस और इसके पायलटों के हवाले से कायम होने वाले तासुर पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब तक इदारे फाल नहीं होंगे निज़ाम में खराबियां बरकरार रहेंगी। इजलास में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि माजी की अदम तवज्जोही के बायस PIA और पाकिस्तान स्टील जैसे कौमी इदारे ज़वाल का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में PIA में जाली डिग्रियों के मामले पर तमाम एयरलाइंस के अमले की असनाद का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी बिरादरी के खदशात दूर करने के लिए एक एलामिया तैयार किया गया, जिसे वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पढ़कर सुनाया। On the instruction of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. इस पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज़ उड़ा रहे हैं वो फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बग़ैर किसी उसके हैं शक के हैं। ये सारे पायलट्स जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज़ वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। वफाकी काबीना ने कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पनबिजली के 3 मंसूबों की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबों में यकसां तरक्याती कामों को यकीनी बनाकर पसमानदा इलाकों में महरूमी दूर करने के लिए सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत की। काबीना ने ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए तरीक़ाकार और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत की। काबीना ने सरकारी तरक्याती मंसूबों में पैसे के ज़िया को रोकने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो 90 दिन के अंदर इस हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। -1 के हवाले से सवाल पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ये एहतसाब से बचने के लिए अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि एहतसाब से बचने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ताहम उन्होंने कौम से वादा कर रखा है कि कौम की लूटी हुई दौलत हर कीमत पर वापस लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कौम से अपने गुनाहों की माफी मांग कर लूटी हुई रकम वापस कर दे और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने से गुरेज करे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में एप्लीकेशन के इजरा की मंजूरी दी और कहा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती जरूरी है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि टाइगर फोर्स की खिदमात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया है, जिससे टाइगर फोर्स को जिला, तहसील, यूनियन कौंसिल और वार्ड की सतह पर मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि ऐप के जरिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में भी आसानी होगी। नाज़रीन, मजीद आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया
کہ پاکستان مسافروں کی جانوں کے تحفظ اور سفری سہولیات کے بین الاقوامی معیار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے PIA میں جامع اصلاحات لا رہا ہے، جس کی وجہ سے خامیوں پر مبنی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی طرف سے وضع کی گئی ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ یورپ آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں اب تک ہونے والی پیش رفت انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزارت خارجہ میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین کی طرف سے بین الافغان مذاکرات پر آمادگی اور مذاکراتی ٹیموں کا اعلان خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس موقع پر ہمیں ایسے عناصر سے خبردار رہنا ہوگا جو افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو سیبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو بھی ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پورے خطے کی تعمیر و ترقی کا انحصار افغانستان میں قیام امن سے مشروط ہے۔ زلمے خلیلزاد نے کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور بروقت کارروائی اور جوانوں کی مثالی جرأت اور بہادری کو سراہا۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و ستم تمام حدیں پار کر گیا۔ سوپور میں ننھے نواسے کے سامنے 70 سالہ نانا کو بے دردی سے شہید کر کے مودی سرکار نے درندگی کی انتہا کر دی۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے وہاں کشمیریوں کے خلاف آئے روز نہتے کشمیری بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس واقعے نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمران منصف خان۔ 3 سالہ معصوم نواسے کی آنکھوں کے سامنے بزرگ نانا کو گاڑی سے اتارا اور گولیاں مار کر شہید کر کے لاش پر بٹھا دیا گیا۔ یہ دردناک منظر ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سوپور کی ایک مصروف سڑک کا۔ خون میں لت پت نانا کی لاش پر روتے معصوم کو کون بتلائے کہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے والا اس کا نانا بشیر احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی لاش کی یہ تصویر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ شہید بشیر احمد کی موت کی خبر اہل خانہ پر بجلی بن کر گری۔ یہ کس سلسلے میں جا رہے تھے؟ یہ اپنے کام سے جا رہے تھے تو سویرے 6 بجے نکلے گھر سے، تو وہاں جب یہ انکاؤنٹر ہوا تو اس کو باہر گاڑی سے اتارا اور اس کے بعد اس کو فائر کیا۔ سیکیورٹی اہلکار لاش پر پاؤں رکھ کر تصاویر بھی بنواتے رہے۔ مودی کی دہشت گرد فورس نے بچے کو موبائل میں بٹھا لیا۔ خوف اور غم کا شکار ننھا بچہ بلکتا رہا۔ واقعے پر شہید بشیر احمد کے اہل خانہ نے عالمی برادری سے انصاف کی اپیل کر دی۔ بھارتی فوجیوں کی شفافیت کی بات ٹویٹر پر سوپور ٹرینڈ کرنے لگا۔ معصوم کشمیریوں پر جاری بربریت کی بھارت میں سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت عالمی سطح پر شدید مذمت جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے مذمتی بیان میں کہا کہ معصوم بچے کے سامنے نانا کو گولیاں مارنے کے واقعے نے لوگوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ اس سے بڑی بے حسی اور بربریت کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یورپی یونین کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی تشویش اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر میں ہونے والی ظلم و زیادتی کو اجاگر کیا اور اس واقعے کو بھی ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع مواصلات بھی بند کر رکھے ہیں اور بین الاقوامی میڈیا کو بھی کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اب اس معاملے پر آواز اٹھانا ہوگی کیونکہ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ راسد بھارتی فوج 1 ماہ میں 54 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ کشمیریوں کے لہو سے جلتے یہ چراغ آزادی کی صبح تک اسی طرح فروزہ رہیں گے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے بھارت کی جانب سے 29 اور 30 جون کو کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان نے کہا کہ رواں سال بھارت اب تک 1546 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ بھارتی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 14 بے گناہ شہری شہید اور 114 زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مینڈیٹ کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے۔
नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करें। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत और इंडियन मीडिया के बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की है, जिसका मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना और रियासती आवाम में इंतशार पैदा करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से एक बयान में तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने मज़मूम मकासद में किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी और आरएसएस के मकरूह हिंदुत्व नजरिए को फरोग देने के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी राह पर गामजन रहेगी जिसकी निशानदेही सैयद अली गिलानी ने कर रखी है। उन्होंने कहा कि अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और उनके कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत और इसके मीडिया को ये भी जानना चाहिए कि पूरी हुर्रियत पसंद क़यादत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ मुत्तहिद है और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी के सियासी नजरियात, अमली इक़दामात और कायदाना बसीरत हुर्रियत पसंद अवाम के लिए मशअले राह है। दरियासना भारतीय फौज ने सोपूर और राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 2 अफराद को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने सोपूर के इलाके मॉडल टाउन में 65 साला बशीर अहमद खान को शहीद किया। मकदूल के अहले खाना ने मीडिया को बताया कि फौजियों ने बशीर अहमद को गाड़ी से नीचे उतारा और गोली मारकर शहीद कर दिया। सैकड़ों अफराद ने लॉकडाउन और पाबंदियों को रोनते हुए मुस्तफाबाद श्रीनगर में शहीद बशीर अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत की। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जून के महीने में रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान 54 अफराद को शहीद किया। मुहासरे और तलाशी की 567 कार्रवाइयों के दौरान उम्र रसीदा खातून समेत 82 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 3 खवातीन की बेहुरमती की गई। फौजियों ने गुज़िश्ता माह के दौरान 25 रिहायशी मकानों और इमारतों को भी तबाह किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने भारत मुखालिफ मुजाहिरा किया। मुक़र्रिरीन ने भारत में फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तरफ से गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल के इजरा की भी मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि भारत कश्मीरी अवाम से उनकी शनाख्त छीनना चाहता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख कश्मीरियत की शनाख्त हैं। हमें इस शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देना है और इसे दुनिया भर में उजागर करना है। मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर हिस्ट्री म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर कदीम तरीन तारीख का हामिल खित्ता है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बैरून मुल्क आबाद कश्मीरी कश्मीर की तारीख और सकाफत से मुतालिक मवाद और मालूमात फराहम करे ताकि उसे महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान और भारत ने 2008 के कौंसलर रिसाई मुआहदे के तहत कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान में 324 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई है, जिनमें 270 माहीगीर और 54 दूसरे कैदी शामिल हैं। भारत की तरफ से भी 362 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त हवाले की गई है, जिनमें 97 माहीगीर और 265 दीगर कैदी शामिल हैं। और अब कुछ बात करेंगे टिड्डी दल के हमलों के हवाले से। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 22 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 974 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में 9 करोड़ एकड़ से जायद रकबे पर सर्वे किया जा चुका है।
اور اب کچھ بات کورونا وائرس کی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 4133 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 91 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,13,470 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,395 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 76,262، سندھ میں 84,640، بلوچستان میں 10,476، خیبر پختونخوا میں 26,598، اسلام آباد میں 12,912، گلگت بلتستان میں 1,489 اور آزاد کشمیر میں 1,093 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1,08,02 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ 60 سے 90 روز میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لیں گے۔ مقامی طلب مکمل ہونے کے بعد برآمد سے متعلق سوچیں گے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ وینٹیلیٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے تربیتی گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ٹیسٹنگ کٹ جو ہماری نسٹ کی ہے اس کو اپروول مل چکی ہے اور یہ PCR بیسڈ ہے۔ ہماری جو ٹیسٹنگ کٹس ہے وہ بھی ہماری اپنی بڑی تعداد میں ہم اپنی خود جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو ہمارے پاس جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے اب آلموسٹ اس کے پاس 100% ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے موجود ہو گئی ہے۔ وینٹیلیٹرز ایک اکوپمنٹ ہے، اس کے ساتھ دوسرا جو امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے وہ آکسیجنیٹر ہے۔ آکسیجنیٹر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی جو پہلی لاٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم NDMA کے حوالے کر سکیں گے۔ پاکستان میں ایک میڈیکل انڈسٹری یا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کی ایک پوری نئی فیلڈ کا آغاز ہوا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1,07,92,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,18,038 ہلاک، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 59,30,000 ہو گئی ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 1,30,785 سے تجاوز کر گئی ہے اور مریضوں کی تعداد 27,78,000 سے زائد ہے۔ چین میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلوں میں سینکڑوں عمارتیں بہہ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث فلڈ گیٹ کھول دیے گئے، جبکہ امدادی کارکن پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور پل بھی پانی میں بہہ گئے، جس کے سبب امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر فصلیں بھی برباد ہو گئیں۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر قومی خبروں کا۔ آپ کو آگاہ کریں، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے والے ہمارے ہیرو ہیں اور ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے CPO آفس میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور IG سندھ پولیس کو شہداء کے نام آرمی چیف کا پیغام پہنچایا۔ تفصیلات ذیشان احمد خان سے۔ پیر کے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنانے والے سیکیورٹی اداروں کے شہداء اور اہلکاروں کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں خصوصی تقریب ہوئی۔ تقریب میں شہداء کے لواحقین اور اہلکاروں سمیت پاکستان تحریک انصاف سندھ کے عہدیدار اور متعدد PTI کے اراکین سندھ اسمبلی اور DG رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ملک و قوم کی لاج رکھی۔ ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والی فورسز ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ اتنے ناپاک عزائم کے باوجود دشمن کے آج پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور مضبوطی سے کھڑا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہ بہادر جوان جنہوں نے اس دلیرانہ کارروائی میں حصہ لیا ہے، میں وزیر اعظم سے بھرپور درخواست کروں گا، تمغہ شجاعت ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔
गवर्नर सिंह ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उस दिन के हीरो गाजी पुलिस कांस्टेबल रफीक सुमरो के लिए 15 लाख रुपए, जबकि सलीम और खलीलुर रहमान के लिए 10-10 लाख रुपए और सिंध रेंजर्स के एहलकारों जावेद और साजिद अली के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची शहर में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को तारीफ इस्नाद दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस कराची का दौरा किया। IG सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने शहीद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची ने IG सिंध को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शहदा के नाम पैगाम पहुंचाया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कोर कमांडर कराची ने एहलकारों और शहदा के वर्सा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,889 पर बंद हुआ। तफसील कराची से नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में। 29 जून को PSX की इमारत में दहशतगर्दों की दाखिल होने की नाकाम कोशिश और उन्हें उनके मजमूम इरादों में नामुराद करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर जवानों ने ये बावर कराया कि मुल्क का हर इदारा महफूज है और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दहशतगर्दी के नाकाम हमले के दौरान PSX में ट्रेडिंग का अमल एक पल के लिए भी नहीं रुका। स्टॉक मार्केट में एक नया कॉन्फिडेंस आया है, नया ज़ील आया है, लोगों में एक वाइब्रेंसी आई है। लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बेहतरीन मौके हैं और इसलिए बेहतरीन मौके हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है। ये जो अटेम्प्टेड अटैक था, इस अटैक को जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेज ने फेल किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी का मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर भी आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले ब्रोकर्स का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है जिन्होंने जवां मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। हम लोग को उम्मीद थी कि कुछ भी नहीं होगा, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग, और उन्होंने वैसा ही किया। हम अपने फौज को, पुलिस को और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई, कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी तरफ उनको आने ही नहीं दिया। हम बिल्कुल नहीं घबराए और पाकिस्तानी कौम ने समझ लिया कि इनको शिकस्त दे दी है। स्टॉक मार्केट में 1,09,488 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 31 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रहा। दहशतगर्द हमले के बावजूद स्टॉक मार्केट में जिंदगी का मामूल पर रहना इस बात का अकास है कि पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि गवादर मुस्तकबिल का इक्तिसादी मरकज है। मिस्र के सरमायाकार इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। मिस्र के सफीर तारिक दारोग से बातचीत करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिस्र के सरमायाकार जहाजरानी, गल्लाबानी, माहीगीरी, मादनियात और खिदमात की फराहमी के अलावा दीगर शोबों में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। मिस्र के सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश रखता है और आला सतह पर वफूद के तबादलों से उन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। तख़फ़ीफ़ गुर्बत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि कोरोना वबा के मनफी असरात से कमज़ोर और मुस्तहिक़ तबके को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तफसील अली गुल से। तख़फ़ीफ़ गुर्बत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि पाकिस्तान में नादार तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 करोड़ 65 लाख खानदानों को हंगामी माली मुआवनत फराहम की गई। We drew on digital capabilities to deliver cash, combining national identity card numbers with data analytics, text messaging and biometric verification. In 10 weeks, we have helped 11 million families, which represents
the most extensive and the most transparent social protection operation ever undertaken in the history of the country and in the most difficult of circumstances. डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार को बढ़ाया जा रहा है. Using 21st century tools such as data analytics, precision payments and data-driven accountability to help those in need. It may be too early to determine new poverty numbers, but we already know that COVID-19 has wreaked havoc with the lives of those that subsist on daily wages, those that earn piece rate, others that struggle with vending stalls in the informal economy, the tens of millions that have been laid off, and hundreds of millions of farmers who we think have subsistence living, but whose lives have been uprooted by the disruptions in local supply chains. उन्होंने कहा कि कोरोना वबा दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर आई है. डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की जरूरत है. अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. नाज़रीन, लाहौर के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहा. वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात और गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू की तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से सादिक बलोच. कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर तयशुदा SOPs के तहत अमल जारी है. बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर में मुलाकात की. बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के अलावा वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पंजाब के ताउन का यकीन दिलाया. वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बैनुसूबाई हम आहंगी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है. दोनों वज़राए आला ने सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद के अहल खाना से उनके घर में जाकर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की. उन्होंने वतन के लिए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत भी पेश किया. जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल IG पुलिस इनाम गनी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा और अफसरान को हिदायत की कि इलाके के अवाम के मसाइल के हल को तरजीह बनाए. गवर्नर हाउस में सूबाई मुतसिब की हल्फ बर्दारी हुई और गवर्नर ने मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान से हल्फ लिया. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है. हमारी सियासत अवाम की खिदमत है, अपोजिशन भी हमारा साथ दे. जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए 8 अजला में तैयारी की जा रही है. लाहौर प्रेस क्लब में ताजर नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के लिए हुकूमत इकदाम करे. सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,201 टेस्ट किए गए. 1,703 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस चले गए, जबकि मजमूई तौर पर 48,527 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन जारी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है. खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में इक़दामात पर गौर किया गया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया. मज़ीद तफसीलात जानेंगे साजिद अख्तर से. पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे में कोरोना वायरस से निमटने से मुतालिक कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया. गवर्नर शाह फरमान ने इजलास की सदारत की. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और दीगर सरकारी हुक्काम ने इजलास में शिरकत की. महकमा सेहत की जानिब से कोरोना टेस्टों की इस्तेदाद, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, तिबी सहूलियात और बेड्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई. सूबे में टिड्डी दल के हमले से बचाव, मुमकिन नुकसानात के तखमीन और तदारक और फसलों को महफूज बनाने से मुतालिक भी इजलास को ब्रीफिंग दी गई. खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाई गई है. योमिया टेस्टों की तादाद इस माह के इख्तिताम तक 10,000 तक कर दी जाएगी. पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में अब तक 1,45,956 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है. आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत और माहिरीन की हिदायत पर अमल करे. वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोरोना के ज्यादा केसेज वाले इलाकों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है. खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर इलाकों को मॉनिटर किया जाता है. उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के लिए मख्तस बजट की 99.3%
100% खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़मशुदा अजला में फंड न खर्च करने के हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। गुज़िश्ता माली साल इन अजला में जारी मनसूबों के लिए 24 अरब रुपए की रकम रिलीज की गई, जिसमें से 23 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ज़मशुदा अजला में 10 से ज्यादा महकमों ने तकरीबन 100% फंड खर्च किए। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हाउसिंग और तामीरात के शोबों का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पेशावर में तामीराती शोबे से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि निजी शोबे में हाउसिंग स्कीमों के लिए जमीन की खरीदारी और नक्शों की मंजूरी समेत तमाम मराहिल को आसान बनाने के लिए मुतल्लिका रूल्स और क़वाइद व ज़वाबित में ज़रूरी तरामीम की जाएं। उधर कोयटा में शहरी इंतजामिया की मुआवनत से PTV सेंटर में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। इस मौका पर जनरल मैनेजर अयूब बाबई ने कहा कि आलमी वबा का फैलाव रोकने से मुतालिक PTV बोलान पर आवाम की रहनुमाई और शऊर की बेदारी के लिए मौसर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। मकामी जुबानों में नशर होने वाले प्रोग्रामों में सफाई का एहतमाम और वायरस से बचाव की तदाबीर को बार बार नशर किया जा रहा है। APM फसीउद्दीन कासी ने कहा कि वायरस के तदारुक के लिए मुलाजिमीन का नज़्म ज़ब्त लायक तहसीन है। वबा से बचाव के लिए इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल से हम इस वायरस से बच सकते हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। एयर चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया और अमले से बातचीत की। मुजाहिद अनवर खान ने स्पेशल सर्विसेज विंग का भी दौरा किया और अमले की जानिब से पेश की गई इंसदादे दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत करते हुए एयर चीफ ने अमले की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और उनके जज्बे और पेशावराना महारत को सराहा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडम बुहिलर ने इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात की और इलाकाई ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुशीर तिजारत ने कहा कि तवीलुल मुद्दत इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान राहदारी तिजारत को तरक्की देने पर अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सड़कों और तवानाई के बुनियादी ढांचे की तामीर से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी रवाबित को मजबूत कर रहा है। एडम बोहिलर ने कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इलाकाई तरक्याती फंड कायम करना चाहता है और पाकिस्तान को भी इस फंड में शामिल करने में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। नाज़रीन, FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 39 खरब 89 अरब रुपए के महासिल इकट्ठे किए, जो 39 खरब 7 अरब के नजर सानी शुदा हदफ से 82 अरब रुपए ज्यादा है। FBR के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2018-19 में ग्रॉस रेवेन्यू की मद में 38 खरब 95 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि इस साल तारीख में पहली मरतबा ये रकम 4 खरब की हद को उबूर करके 41 खरब 23 अरब तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-83, I-84 और I-10-2 को आज शाम 7 बजे और I-8 और I-10 के मराकज को जुम्मे के रोज सुबह सवेरे ओपन किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया ने डी सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डी सील किए जाने के बावजूद इन सेक्टर्स में दफा 144 का नफाज बाकी रहेगा और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर ज़िले इंतजामिया फौरी और सख्त एक्शन लेगी। ढोक हुसैन जिला कोहाट के कुआं नंबर 1 से गैस और कंडेंसेट की कमर्शियल पैदावार का आगाज कर दिया गया है। यहाँ से निकलने वाली गैस सुई नौदिन के नेटवर्क में शामिल कर दी गई है। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 से यौमिया 300 बैरल कंडेंसेट और 1 करोड़ 20 लाख मकाब फीट गैस फराहम करेगी। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 में होने वाली दरियाफ्त से OGDCL और मुल्की ज़र मुबादला में खातिर ख्वाह बचत होगी और तेल और गैस की पैदावार में इजाफे से घरेलू सारिफीन और सनत की बढ़ती हुई तलब को कम करने में भी मदद मिल सकेगी। रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज इस केस में आज अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत के इस्तिफ्तार पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज के शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जबकि इस हवाले से एक रेफरेंस जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक की तौसीह कर दी है। पुन्नू आकिल में कौमी शाहराह पर
VIP फोर्ड गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया है। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान थीं। अलमनाक हादसे के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गुंजान आबादी वाले इलाके नेमत गली से था। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब खान ने कहा है कि मुस्तकबिल के मेमारों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का रोशन पाकिस्तान है। वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसील के लिए हरीपुर से आसिम खान। फैब फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर पानी बिजली उमर अयूब खान और रहनुमा तरीके इंसाफ यूसुफ अयूब खान थे। फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान ने बताया कि फाउंडेशन में तकरीबन 500 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं और तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा कि मैं चेयरमैन फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी बदौलत हरीपुर में बेसहारा लोगों को एक सहारा मिला और उन्होंने गजा और शाम के मुसलमानों की मदद भी की। इन्होंने शुरू में हरीपुर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने ये बिल्डिंग्स बनाई और आज जो एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था और जिसका इफ्तिताह इन्होंने हमसे कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा खूबसूरत नावर दरख्त की तरह ये हमें मंजर यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। जो हमने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स, जो हमने हुनर की स्किल्स हमने देखी हैं बच्चों को ये जो दे रहे हैं, उस पे आपके स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, मास्क PPEs बना रहे हैं, इस कोरोना के जंग में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है और हम सबको माशरे में खिदमत खल्क में हिस्सा लेना चाहिए। आसिम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हरीपुर। नाज़रीन, 142 दरवाजों और 42 कमरों पर मुश्तमिल मंचन आबाद का कसरे भवन खूबसूरत नक्शो निगार और मुजस्सिमा साजी की जिंदा मिसाल है। मंचनाबाद की तारीखी 2 मंजिला खूबसूरत आलीशान इमारत जिसकी शोहरत और तस्करा फन तामीर नक्शो निगारी की वजह से दीगर शहरों तक फैला हुआ है। माजी में इस इमारत को कसरे बून के नाम से भी जाना जाता था। अब इस इमारत को सुखेरा हाउस के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत इमारत 8 किनार रकबे पर फैली हुई है। तकरीबन 90 साल पुरानी तारीखी अजीमुशान 2 मंजिला इमारत छोटे बड़े 42 कमरों और 142 दरवाजों पर मुश्तमिल है। तारीखी तौर पर यह नागर महल के नाम से भी मशहूर थी। हिंदू जागीरदार नागर मल ने 1925 में इसकी तामीर शुरू कराई जो कि 1930 में पाया तकमील को पहुंची। लाल सीमेंट और कीमती लकड़ी से बनी इस तारीखी हवेली का दाखिली दरवाजा मुगलिया तर्ज तामीर पर बनाया गया है। ये तारीखी इमारत 1947 में मेरे दादाजी मियाँ बाग अली सुखेरा जो बिफोर पार्टीशन MLA थे, उन्होंने रियासत भावलपुर से क्लेम में परचेज की। तब से हम ही यहाँ पे क्याम पजीर हैं। तारीखी इमारत मंचनाबाद की पहचान है। अंदरून और बैरून मुल्क से यहाँ पर हजारों अफराद विजिट के लिए आते हैं और ये अपनी मिसाल आप है। इस इमारत पर संगे मरमर और संगे सुर्ख पर बने नक्शो निगार कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं जो देखने वालों पर एक सहर तारी कर देते हैं। इस शहर में इसकी अजमत रफ्ता की दास्तां इस तारीखी खूबसूरत इमारत में नजर आती है। 1945 में फिरका वारियत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तारी के डर से नागरमल खानदान समेत फिरोजपुर भाग गया था, जिसके बाद आज तक इस तारीखी हवेली में सुखेरा खानदान मुकीम है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, ज़ेरीन सिंध, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, वॉस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी और कोचेस की ज़ेर निगरानी अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश की। हेड कोच मिसरोल हक, बैटिंग कोच यूनस खान और बॉलिंग कोच वकार यूनस और मुश्ताक अहमद ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशंस के हवाले से खुसूसी टिप्स दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम कोविड-19 टेस्टिंग के नताइज बनती आने के बाद तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट
और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप जुमे को कौमी एयरलाइन के जरिए मैनचेस्टर रवाना होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद ये 6 खिलाड़ी बजरिया बस वॉस्टरशायर रवाना हो जाएंगे, जहां इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए तमाम कोविड-19 टेस्ट लिए जाएंगे। मनफी रिजल्ट देने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ शामिल कर लिया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के 12 अरकान के टेस्ट मनफी आए थे, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग की इजाजत मिली थी। तकरीबन 3 माह बाद दोबारा मैदान में उतरने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट में वापसी पर कोचेज और खिलाड़ियों ने मुसरत का इजहार किया है। और मेरे ख्याल में बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस को और सारा कितने अच्छे से 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड और इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिस होगा। अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ दोबारा रीयूनियन होने का और आई विश कि हम इंशाल्लाह अच्छा करें और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे अपने यंगस्टर से, अपने क्रिकेट टीम से। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हाई टाइम कि हम क्रिकेट में वापस आए। 3 महीने हो गए आई थिंक वो PSL जो सबने खेली थी, बहुत अच्छा लग रहा है और होपफुली ये स्टार्ट है कि हमारे लिए बहुत अच्छा टूर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ओहदे से अलग हो गए हैं। शशांक मनोहर 2 मरतबा ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए। डेप्यूटी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा आर्जी तौर पर चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाएंगे। ICC चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाबात का तरीकाकार अगले हफ्ते तक मंजूर होने का इम्कान है। शशांक मनोहर इससे कबल 2 मरतबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम का कहना है कि कौमी टीम की तरफ से खेलने का एक अलग ही जज्बा और खुशी होती है। वॉस्टरशायर में ट्रेनिंग सेशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए फवाद आलम ने कहा कि दौरे इंग्लैंड के दौरान मिसबाह उल हक और यूनुस खान जैसे लेजेंड्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फवाद आलम ने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए खिलाड़ी तमाम हिफाजती तदाबीर मलहूज़ खातर रखे हुए हैं। स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी शिद्दत से महसूस होगी, ताहम टीवी पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में दिफाई चैंपियन बार्सिलोना का टाइटल खतरे में पड़ गया है। लियोनेल मेसी की टीम का एटलेटिको मैड्रिड से मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। बार्सिलोना में खेले गए मैच में दिफाई चैंपियन की टीम 1 गोल कर सकी, जबकि दूसरा गोल हरीफ टीम के खिलाड़ी ने तोहफे में दिया। खेल के 11वें मिनट में डिएगो कोस्टा ने फुटबॉल को अपने ही जाल में डालकर बार्सिलोना को बढ़तरी दिलाई। तहम 8 मिनट बाद एटलेटिको मैड्रिड के साउल ने मुकाबला बराबर कर दिया। 50वें मिनट में मैसी ने गोल करके अपना 700 गोल हदफ हासिल करते हुए टीम को सबकत दिलाई। 62वें मिनट में साउल ने दूसरा गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। इस बराबरी के बाद बार्सिलोना का टाइटल के दिफा की मुहिम खतरे में पड़ गई और रियल मैड्रिड का टाइटल के लिए रास्ता मजीद साफ हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्राइटन की टीम को 3 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपना नाम कर लिया। हरीफ टीम कोई भी स्कोर गोल न कर सकी। मैच अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। 50वें मिनट में ब्रूनो ने फुटबॉल को एक बार फिर हरीफ टीम के जाल में डालकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कामयाबी दिलाई। इस फतह के साथ यूनाइटेड की टीम पॉइंट्स टेबल अतालवी फुटबॉल क्लब सीरे ए में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस ने गिनेवा को हरा दिया। मैच में लीग लीडर यूवेंटस ने 17वें नंबर पर मौजूद मेजबान गिनेवा को के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान मैच का पहला हाफ गोल से खाली रहा, ताहम दूसरे हाफ के 5वें मिनट में पाउलो डिबाला ने गोल करके यूवेंटस को बढ़तरी दिलाई। 6 मिनट बाद रोनाल्डो ने अपनी टीम की बढ़तरी दुगना कर दी। खेल के 73वें मिनट में डगलिस कोस्टा ने यूवेंटस के लिए तीसरा गोल किया। गिनेवा ने अपना कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां महदूद हो गई हैं। ज्यादातर मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 32 ममालिक में से दूसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। तफसील बता रहे हैं कबीरवाड़ा से मोहम्मद यासिर वकार शाह अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में होने वाली ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कबीरवाला से खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की और अपनी मेहनत के पेश नज़र कौमी सतह के मुकाबलों में मोहम्मद वासिफ अली डुड्डी ने गोल्ड मेडल, तहलील बाशी ने सिल्वर मेडल,
महनाज किरण और मलिक एहतशाम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपने शहर और वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो फुमजे लवर्स चैंपियनशिप चाइना में पाकिस्तान की तरफ से तहलील बाशी ने नुमाइंदगी की और दूसरी पोजीशन में सिल्वर मेडल हासिल करके 32 ममालिक में वतन अजीज पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया। मैंने ऑनलाइन नेशनल फुमजा 2020 में कबीरवाला की नुमाइंदगी की और उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी तरह मैंने चाइना के ऑनलाइन फुमजा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन किया और उसमें भी सिल्वर मेडल हासिल किया। मैंने नेशनल ऑनलाइन चैंपियनशिप में ताइक्वांडो लवर्स कबीरवाला की नुमाइंदगी की और अंडर 17 में गोल्ड मेडल हासिल किया। मौजूदा लॉकडाउन के पेश नजर ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने घरों में अपनी सलाहियतों को जंग आलूद नहीं होने दिया, बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुनअक़िद होने वाले मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल हासिल करके न सिर्फ कबीरवाला बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहम्मद यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कबीरवाला। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। काज़िम अली और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तफसील का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ PTV न्यूज पर। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर आर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदुगलू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ।
तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहा हो, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहा हो। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा हो। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सार्फिन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। जा रहा हूँ मैं तो औखी सौखी होके कर दूंगी, पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तस्वीर तुम्हारे नेड़े से नहीं। बड़ी आपा जी सलाम। क्या बक रहे हो? पूछो वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर, घास वाले मैदान। अब ये आपकी सारी बात चीजें नकली है, माल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है, और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 400